Now next topic, that is average velocity. Now what is the definition of average velocity? Average velocity, that is the ratio of displacement to time interval. Okay. Now see, in the previous topic we discussed about the displacement. So when particle is moved on the curved path from P to Q in time interval T2 minus T1, then the displacement, that is delta R. So average velocity, that is the ratio of the displacement and the corresponding time interval for the particle or for the object. So we can write average velocity. So this one is vector V, symbol of velocity, and this particular triangular bracket, that is the symbol of average, or sometimes we write bar also. So that is equal to delta R by delta T. But delta R, that is the displacement vector, which is equal to delta x I caret plus delta y j caret upon delta T. So here we can simplify this one as delta x upon delta T I caret plus delta y by delta T j caret. Now multiple of I caret, that is the x component of vector, multiple of j caret, see this one is the x component of the vector V, then multiple of j caret, that is the y component of vector V. So we can say this delta x by delta T I caret, that is the x component of average velocity, and this one is the y component of average velocity. So we can write it as average velocity V equal to Vx I caret plus Vy j caret. Now see, here the direction of average velocity. So average velocity is defined as delta R by delta T. Time interval, that is the scalar quantity. So whatever is the direction of delta R, that will be the direction of average velocity. Now here see one very important thing. Why we say this velocity is average velocity, that you can understand here. Now see, your velocity, that is in the direction P to Q. Your particle is not moving in the direction P to Q. Your particle is moving from P to in upward direction, then after it move in downward direction, means on this curved path it reaches from P to Q. But when we think about the average velocity, then we get idea about initial to final positions only. Right? And therefore we say this is the average velocity in the time interval T2 minus T1. यहां से वहां तक फाइनली क्या सिचुएशन थी वही एक्सप्लेन हो सकती है. इन बिटवीन दिस टाइम इंटरवल T2 T1, राइट, तो T2 माइनस T1 ये जो टाइम इंटरवल है उसमें पार्टिकल ऊपर गया, नीचे गया, स्लो हो गया, फास्ट हो गया, कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है यहां पे. देयरफॉर वी से दिस इज एवरेज वेलोसिटी. क्लियर? लेकिन अगर हमें इन बिटवीन क्या हुआ, इफ यू वांट टू एक्सप्लेन द वेलोसिटी एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट, at a particular time, then how we can represent it? So then it is called instantaneous velocity. Exactly at a particular instant, exactly at a particular time, what is the velocity? That is called instantaneous velocity, right? Okay, now see, to find out the instantaneous velocity, what we have to do, right? So here you have to think about mathematically somewhat.
suppose you are moving from station A to station B, and distance between these two stations, that is suppose 100 kilometer, and suppose this total distance is covered in time interval 2 hours. हम अपनी कार लेके निकले, ए स्टेशन से बी स्टेशन पहुंच गए, टोटल डिस्टेंस हमने कवर किया 100 किलोमीटर, 2 घंटे में कवर किया। तो यहां पे जब हम बोलेंगे कि व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द कार विथ विच दिस डिस्टेंस इज कवर्ड, सो सिंपली हम बोलेंगे कि ये डिस्टेंस कवर किया, इतने टाइम में किया, सो वी कैन से द वेलोसिटी दैट इज 100 by 2, that is 50 किलोमीटर पर आवर। लेकिन ये जो वेलोसिटी हुई वो हो जाएगी एवरेज वेलोसिटी, तो हमें लिखना पड़ेगा दिस इज एवरेज वेलोसिटी। क्योंकि देखो अब यहां पे अगर हम बोले कि हम स्टेशन ए से स्टेशन बी 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से पहुंच गए, तो इसका मतलब ये तो नहीं हुआ कि जैसे आपने ए से स्टार्ट किया डायरेक्ट आपने स्पीड बना ली 50 और अप टू बी स्टेशन continuously your speed is 50 50 50 50 50 and all of a sudden at B you stop the car. It is not like that. Your speed initially was 0, then increases, then due to traffic or some other reason decreases, increases, decreases, like that, and in this way you reach there. Now suppose you started at 8 a.m. and you reached here at 10 a.m. 2 घंटे में पहुंच गए। अगर कोई आपको पूछे कि 8:45 पे क्या सिचुएशन थी, आपकी वेलोसिटी क्या थी एग्जैक्टली, तो 8:45 पे एग्जैक्टली जो आपकी वेलोसिटी थी दैट इज कॉल्ड इंस्टंटेनियस वेलोसिटी। तो वो कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? वैसे तो एक ही ऑप्शन है, स्पीडोमीटर देखे जाओ और 8:45 पे स्पीडोमीटर ने आपको जो स्पीड दिखाई दैट इज योर इंस्टंटेनियस वन। सो हमेशा याद रखो कि स्पीडोमीटर गिव्स यू इंस्टंटेनियस वेलोसिटी। बट यहां पे हम एक कॉन्सेप्ट लेंगे, राइट? ये हमने टाइम इंटरवल ले लिया 2 घंटे का। अब हमें 8:45 पे स्पीड चाहिए, तो हम टाइम इंटरवल जो है वो छोटा बनाएंगे, ठीक है? टाइम इंटरवल स्मॉलर एंड स्मॉलर, स्मॉलर एंड स्मॉलर लेते जाएंगे, राइट? मानो कि ये हुआ कि हमने स्मॉल टाइम इंटरवल ले लिया, मतलब कि 8:30 to 9:30, 8:30 to 9:30, ये 1 घंटे में हमने कितना डिस्टेंस कवर अप किया, राइट? वो हम कैलकुलेट करेंगे। फिर 1 घंटे में कितना डिस्टेंस कवर किया उससे हम वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे। अपना 8:45 इसके बीच में आ जाता है। तो ऐसे हम टाइम इंटरवल मानो कि छोटा 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 करते जाते हैं, राइट? और हम फाइंड आउट करते हैं कि 8:40 to 8:50, ये जो 10 मिनट का टाइम इंटरवल है मानो कि जिसके अंदर अपना 8:45 वाला टाइम आ जाता है ये इंटरवल के अंदर, तो ये 10 मिनट में हमने देखा कि हमारी वेलोसिटी कांस्टेंट थी। तो ये 10 मिनट के लिए अगर हम वेलोसिटी फाइंड आउट करें
और अगर अपनी वेलोसिटी 840 से लेके 850 तक अगर कांस्टेंट थी तो 845 पे वही होगी, राइट। तो 845 पे हमारी वेलोसिटी हमें मिल गई और एग्जैक्टली 845 पे मिली, इसलिए हम उसे कहते हैं इंस्टंटेनियस वेलोसिटी। क्लियर कॉन्सेप्ट? नाउ सी हियर। तो यहां पे ये कॉन्सेप्ट हो गया कि हमें टाइम इंटरवल छोटा 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 बनाना है, राइट। एंड हर एक टाइम इंटरवल के लिए हमें डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है। फिर वो डिस्प्लेसमेंट यूज करके हमें वो हर एक टाइम इंटरवल के लिए वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। और ये प्रोसेस हमें कहां तक करनी है? जब तक फॉर अ गिवन टाइम इंटरवल हमारी वेलोसिटी कांस्टेंट ना बन जाए, तब तक हमें ये प्रोसेस करनी है। तो अब ये जैसे मैंने एक्सप्लेन किया उसके हिसाब से आपको पता चलता है कि ये तो प्रैक्टिकल वे नहीं है ऐसा करना। तो यहां पे हम क्या करते हैं, हम मैथमेटिक्स की यूज करते हैं, हम मैथमेटिक्स से हेल्प लेते हैं। मैथमेटिक्स में एक डिफरेंशिएशन का जो कॉन्सेप्ट है वो हमें डायरेक्टली ऐसा ही रिजल्ट देता है। तो हम क्या करते हैं, यहां पे इंस्टंटेनियस वेलोसिटी v, तो हमें फाइंड आउट करना है रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू टाइम इंटरवल। लेकिन टाइम इंटरवल हमें इतना छोटा लेना है कि वो टाइम इंटरवल के लिए हमारी वेलोसिटी कांस्टेंट बन जाए। तो वो टाइम इंटरवल में किसी भी टाइम के लिए वेलोसिटी सेम रहेगी। सो वी कैन से दैट इज द इंस्टंटेनियस वेलोसिटी एट दैट पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट। तो उसके लिए हम यहां सिंबल यूज करते हैं कि लिम। एक्चुअली ये बोला जाता है लिमिट, उसका शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं लिम। बोला जाता है लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0। मतलब कि टाइम इंटरवल 0 नहीं लेना है, 0 के नजदीक ले जाना है। मतलब जितना हो सके उतना स्मॉल, ताकि ये रेशियो जो है अपना वो कांस्टेंट आए। तो ये जो प्रोसेस है मैथमेटिक्स में उसे बोलते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ आर with respect to time t। differentiation of r with respect to time t। अब हमारे पास एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट की हुई है हमने, यहां पे देखो। तो डेल्टा आर बाय डेल्टा टी दैट इज एवरेज वेलोसिटी, उसके लिए हम लिखते हैं डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी आई कैरेट प्लस डेल्टा वाई बाय डेल्टा टी जे कैरेट। वो हमने यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब ये लिमिट इंडिविजुअली इसको अप्लाई करते हैं। तो लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी आई कैरेट, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा वाई बाय डेल्टा टी जे कैरेट। बट जैसे ये डिफरेंशिएशन और आर ऑफ आर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम टी है, वैसे हम लिख सकते हैं कि दिस वन इज डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम टी, देन this one is the differentiation of y with respect to time t। तो i कैरेट का मल्टीपल x कंपोनेंट हो गया, j कैरेट का मल्टीपल y कंपोनेंट हो गया। तो हम यहां पे लिख सकते हैं कि इंस्टंटेनियस वेलोसिटी v दैट इज vxi कैरेट प्लस vy j कैरेट। ये हो गया x कंपोनेंट ऑफ इंस्टंटेनियस वेलोसिटी, ये हो गया y कंपोनेंट ऑफ इंस्टंटेनियस वेलोसिटी। अब हम इसका मैग्नीट्यूड भी लिख सकते हैं। तो मैग्नीट्यूड दैट इज इक्वल टू अंडर रूट vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर, क्योंकि vx एंड vy दोनों परपेंडिकुलर कंपोनेंट है। एक कंपोनेंट x एक्सिस पे है, एक y एक्सिस पे है। सो वी कैन राइट magnitude of velocity v that is under root vx square plus vy square। and if we want to find the direction then simply tan theta
that is equal to Vy by Vxy component upon x component. So theta that is tan inverse Vy by Vx. ये हो जाएगी उसकी डायरेक्शन. आई बात समझ में? अब देखो कि डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एट एनी पॉइंट अगर हम फाइंड आउट करें, सो दैट विल बी इन द डायरेक्शन टेंजेंशियल टू द पोजीशन ऑफ दैट पर्टिकुलर पार्टिकल. नाउ सी, द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एट एनी पॉइंट ऑन द पाथ ऑफ द ऑब्जेक्ट इज टेंजेंशियल टू दैट पाथ एट दैट पर्टिकुलर पोजीशन. और देखो ये भी हम समझ सकते हैं यहां पे, मानो कि हम एक पार्टिकल कंसीडर करते हैं विच वन इज मूविंग ऑन द कर्व्ड पाथ. ये उसका कर्व्ड पाथ है, राइट? एंड ऑन दिस कर्व्ड पाथ इट इज मूविंग फ्रॉम P टू Q, राइट? तो पहले हम लेते हैं लार्जर टाइम इंटरवल. देखो कि P पोजीशन T टाइम पे है, S पोजीशन T डैश टाइम पे, R पोजीशन T डबल डैश टाइम पे, Q पोजीशन T ट्रिपल डैश टाइम पे. ठीक है? तो अगर हम पहले टाइम इंटरवल लेते हैं T ट्रिपल डैश माइनस T, तो डिस्प्लेसमेंट हो गया वेक्टर PQ. तो ये डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल करेंगे तो हमें वेलोसिटी मिलेगी. लेकिन दैट वेलोसिटी इज नॉट रिप्रेजेंटिंग द एक्चुअल डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी एंड एक्चुअल पाथ, सो वी कैन से दैट इज एवरेज. अब हम इंस्टेंटेनियस वाला कॉन्सेप्ट लेते हैं, टाइम इंटरवल छोटा छोटा कंसीडर करते हैं. ठीक है? तो अब हम टाइम इंटरवल T डबल डैश माइनस T लेते हैं. तो देखो हमारा पोजीशन वेक्टर के हिसाब से डिस्प्लेसमेंट हो गया PR. क्लियर? अगेन हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि डेल्टा R डबल डैश डिवाइडेड बाय T डबल डैश माइनस T, सो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल, अगेन एवरेज वेलोसिटी. अगेन टाइम इंटरवल छोटा करो तो T डैश माइनस T, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया PS. अगेन वी कैन कैलकुलेट द वेलोसिटी. Now see here one important thing you can observe, as we take time interval smaller and smaller, smaller and smaller, smaller and smaller, your displacement vector is approaching to the actual path of the particle. देखो actual path के करीब जा रहा है. अगर हम very small time interval ले लें, at time t it is here, and very next second, or we can say very next instant, its position will be very close to it here. And now if we prepare the displacement vector here, smaller one, and we calculate the velocity, then that will be instantaneous one, because here in this small time interval velocity that will be almost constant one. And if you prepare here the displacement vector, then that will be tangential to this particular curved path. So here in this way we can understand this thing. The direction of the velocity at any instant on the path of the object is tangential to its path at that particular position or at that particular instant. Clear to all of you? Any doubt?